Sir, the fact that you're mentioning the history, and it brings me to what I did when the conflict was underway. I had traveled to Donetsk, I traveled to Luhansk, Zaporizhia, Kherson, and most of the people over there are Russian speaking. They speak Russian language. They were very disappointed with Kyiv that it was banned in eastern Ukraine. But they were also a little shocked that how is Putin doing this to us? We are his people. A lot of women I spoke to were in shock. So what do you have to say to people in eastern Ukraine who actually have families in Russia, who on a daily basis move from Ukraine to Russia? So what do you have to say to them? Я не понял вопрос. मैं समझा नहीं वो किस लिए हैरान थे। Чем? That they were shocked that there was an operation that happened and their homes were destroyed because they lived in eastern Ukraine and they have love for Russia and the Russian people, and they're Russian speaking themselves. Да. Ответ очень простой. Они жили, видимо, в той части Украины, которая в той इसका части, जवाब скажем, той же самой बड़ा Луганской или आसान Донецкой है области, которая находилась कि под वो क्षेत्र контролем киевских властей. कीव के कंट्रोल में थे, Но та часть और जो क्षेत्र कीव के Луганской или कंट्रोल में Донецкой नहीं области, थे которая не उनको находилась पूरे под контролем, तरीके она से уничтожалась कीव ने киевским режимом. बर्बाद कर दिया। और इसलिए हम Мы मजबूर हो вынуждены गए были उन начать इलाकों का оказывать साथ देने के поддержку लिए той जो части, नष्ट कर которая दिए गए। заявила о своей независимости. लोगों ने रेफरेंडम के второе, लिए предоставили खुलेआम людям बोलना возможность शुरू कर दिया। высказаться на जो открытом आज़ादी चाहते референдуме. थे इधर आएं, Кто और जो считал नहीं चाहते целесообразным वो दूसरी तरफ जा выйти с सकते थे। России, он за это हम उन्हें проголосовал. मना नहीं Кто करेंगे, нет, он мог वो спокойно बेशक जा सकते हैं। уехать на другие части украинского государства. Пожалуйста, мы этому не мешали. ज़ेलेंस्की की अगर बात करें तो बहुत कुछ उनको प्रॉमिस किया गया, नेटो मेंबरशिप, ईयू मेंबरशिप, लेकिन ऐसा अब तक कुछ हुआ नहीं है। आपको क्या लगता है, नेटो मेंबरशिप कभी भी ऑन द टेबल था यूक्रेन के लिए, ज़ेलेंस्की के लिए? Когда этот господин приходил к власти, он заявил, что он будет जब добиваться जेलेंस्की любой सत्ता में ценой, आए तो उन्होंने любой, कहा था कि в любом वो हर способе हालत में миру, शांति की не कोशिश пожалеет करेंगे, для этого ничего, भले в ही том इसके числе लिए своей उन्हें жизни. अपना करियर दांव पर लगाना पड़े। Но, как видим, теперь अब देखिए всё совсем सब смотрится कुछ по-другому. दूसरी तरह Он, से दिखाई как и पड़ его रहा है। предшественники, अब वो छोटे начал से समूह руководствоваться не интересами नेशनल народа, रेडिकल а फासिस्ट की интересами मदद से узкой группы हल निकाल रहे हैं। националистов, ये причем सरकार радикально अपनी настроенных सोच से националистов. न्यूनाजी है। И, по इनके сути, राष्ट्रवाद решает और न्यूनाजी की две परिभाषा задачи. एक ही है, И और इसी वजह से этот सारा режим, माहौल он очень युद्ध का по बना। своей नाकामयाबी ही मिली। по своей ментальности очень действительно похож на неонацистский режим, потому что крайняя форма национализма и неонацизма это почти одно и то же. Это почти равные понятия. И сегодня, безусловно, все сводится к военным действиям. उनके लिए सबसे ज़रूरी है ये समझना कि शांतिपूर्ण वार्ता से ही हर समस्या का हल मुमकिन है, और यही बात हम उनको साल 2022 से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो वो करना चाह रहे हैं वो तो वही बता सकते हैं। राष्ट्रपति पुतिन, मैं आप ही को कोट कर रही हूं, आपने कहा कि नेटो का ईस्टर्न एक्सपेंशन यानी नेटो का पूरब की तरफ विस्तार आपको स्वीकार्य नहीं है और वही सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन क्या वाकई नेटो से रशिया को इतना बड़ा खतरा है, या सिर्फ ये एक प्रिटेक्स्ट रहा, एक आधार बना जो आपने यूक्रेन के खिलाफ कदम उठाया? Послушайте, НАТО это отдельная тема. Русский язык, русская культура. देखिए, नेटो जो है वो एक बिल्कुल अलग मसला है। Территориальный вопрос. Это रूसी очень важный भाषा, вопрос. संस्कृति, НАТО धर्म, здесь हम यहाँ पर не कुछ भी требуем для असाधारण себя नहीं ничего मांग रहे। эксклюзивного. रूसी Во-первых, संस्कृति, есть общее रूसी решение, भाषा, согласно которым धर्म безопасность और одной यहाँ तक страны कि не क्षेत्रीय может सवाल, быть ये सभी обеспечена महत्वपूर्ण за हैं। счет безопасности लेकिन других. ये सब Это такая एक अलग श्रेणी की बातें हैं, जबकि नेटो теория पूरी не तरह очень से понятная, दूसरी ही но चीज है। я ее очень हम कोई просто अनोखी, вскрою कोई अभूतपूर्व मांग नहीं कर रहे। теорию. एक मूल Вот सिद्धांत है, говорят, что किसी каждое भी देश की государство, в том числе सुरक्षा Украина, दूसरे имеет право देश की сама सुरक्षा का для उल्लंघन себя करके नहीं हो выбрать सकती। способ своей защиты, ये सिर्फ способ किताबों में लिखी लाइन обеспечения नहीं своей है। безопасности. अगर सुनने में कठिन लगे तो मैं इसे बहुत Мы सरल отказываем भाषा में Украине? कहूँगा। Нет. यूक्रेन समेत Но это не हर должно देश को делаться अधिकार за счет है कि अपनी безопасности सुरक्षा России. कैसे करनी है वो स्वयं तय करे। Украина считает, हम что इस ей अधिकार лучше को вступить в НАТО. यूक्रेन А से мы छीन говорим, नहीं रहे। это
लेकिन बात यह है कि यूक्रेन की सुरक्षा रूस की सुरक्षा की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। यूक्रेन सोचता है कि नेटो में शामिल होना उसके लिए अच्छा है, पर हम कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ये कदम रूस की सुरक्षा के लिए प्रत्यक्ष खतरा होगा। इसलिए जरूरत है एक ऐसा तरीका खोजने की जिसमें आपकी सुरक्षा भी बनी रहे और हमारी सुरक्षा खतरे में ना पड़े। हम कोई नई मांग नहीं कर रहे, हम बस इतना कह रहे हैं कि जो वादे हमें किए गए थे उन्हें बस पूरा किया जाए। ये कोई कल उठाया गया मुद्दा नहीं है, ये तो तब तय हुआ था जब मैं सत्ता में भी नहीं था। उन्होंने खुद कहा था 1 इंच भी पूर्व की ओर विस्तार नहीं होगा, लेकिन उसके बाद भी नेटो ने कई बार विस्तार किया और अब वे यूक्रेन को भी नेटो में शामिल करने की कवायद में थे। यही कारण है कि असंतोष पैदा हुआ, क्योंकि नेटो एक सैन्य गठबंधन है और उसका आर्टिकल 5 आज भी उतना ही प्रभावी है, लेकिन कोई हमारी सुरक्षा चिंताओं को गंभीरता से नहीं लेता। जब यूक्रेन स्वतंत्र हुआ था तो उसके पहले ही महत्वपूर्ण दस्तावेजों में सैन्य तटस्थता की घोषणा थी और यही यूक्रेन की राज्य व्यवस्था की नींव बनी। उसकी संप्रभुता की घोषणा जिसमें साफ लिखा हुआ है कि यूक्रेन तटस्थ रहेगा। Это база украинской независимости, украинской современной государственности. И там написано, что Украина – это нейтральное государство. प्रेसिडेंट पुतिन, यहाँ पे अगर हम क्राइमिया की बात करें, उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से आपको G8 से हटा दिया गया और अब कहीं ना कहीं वेस्ट ये कह रहा है कि रूस अकेला अलग थलग खड़ा है, कि उन्होंने वो सक्सेसफुल रहे रूस को कोट एंड कोट आइसोलेट करने में। Нам не нужно было получать этот важный порт в Крыму, потому что он был наш. हमें क्रीमिया पोर्ट को लेने की जरूरत नहीं, वो हमारा है। हमारी नौसेना यूक्रेन से समझौते के तहत वहाँ पहले से ही मौजूद थी। Развала Советского Союза флот наш там все равно остался. Дело совершенно не в этом, хотя это важно. सेविस्तोपोल के नौसेना के पोर्ट पर सोवियत संघ विलय होने के बाद से सेना वहीं थी, ये एक फैक्ट है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, हमने क्रीमिया पोर्ट पर कब्जा नहीं किया। हम उन लोगों की मदद के लिए आगे बढ़े जो कि अपने भविष्य को इनके हाथों में छोड़ चुके थे। Независимой Украины после развала Советского Союза. Да, так исторически сложилось. Ну хорошо, ладно, теперь будем так жить. Но мы исходим из того, что мы живем в демократическом उनका मानना था जब सोवियत संघ का विलय हुआ तो उनकी मर्जी नहीं पूछी गई, पर अब लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाने के बाद उन्हें ये मंजूर नहीं था। Мы не хотим так жить. И возникла угроза не просто давление, а расправы над Крымчаткой. और किसी को लगता है कि रूस कुछ और करेगा तो ये गलत है। रूस हमेशा अपनी भलाई की रक्षा करेगा। Иначе, то глубоко заблуждаются. Мы всегда будем защищать свои интересы и своих людей. कई सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं प्रेसिडेंट पुतिन कि रूस G8 में वापस जुड़ना चाहता है, ऐसा हो रहा है? नहीं, आप ये बहुत दिलचस्प जवाब आप दे रहे हैं। मतलब इसकी कल्पना करना मुश्किल है कि आप खुल के कह रहे हैं कि आपको G8 में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मतलब G7 से वापस G8 बने और आपको हिस्सेदारी मिले। Да. Дело вот в чем. Дело в том, что я когда-то так случилось, я сейчас не буду вдаваться в детали. ये एक दिलचस्प टिप्पणी है और आप सही कह रहे हैं। मैं इस विषय पर बिल्कुल स्पष्ट हूँ। देखिए, सच बात यह है कि मैं इन बैठकों में जाना बहुत पहले ही बंद कर चुका था। ये पहली बात है। दूसरी बात, मैं सच में नहीं समझ पाता कि G7 देश खुद को G7 क्यों कहते हैं। G यानी ग्रेट, यानी बड़े। लेकिन जरा सोचिए, आज भारत क्रय शक्ति के आधार पर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो फिर क्षमता के लिहाज से यूके या कुछ और देशों की स्थिति क्या है? मुझे ये थोड़ा विचित्र लगता है।
लेकिन ठीक है, उनका अधिकार है खुद को जो कहना चाहे। हाँ, इन देशों की अर्थव्यवस्थाएं हाईटेक हैं, उनकी नींव मजबूत है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन इसके बावजूद वैश्विक अर्थव्यवस्था में उनकी हिस्सेदारी लगातार घट रही है, और ये रुझान आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि ये उनकी सरकारों की गलत नीतियों का प्रत्यक्ष परिणाम है। जैसे जर्मनी को देखिए, 3 साल से मंदी में है। फ्रांस कठिन हालात में है, मंदी के बिल्कुल करीब, और यही स्थिति कई अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की भी है। लेकिन ये भी सच है कि G7 अभी भी एक महत्वपूर्ण मंच है। वो काम करते हैं, चर्चा करते हैं, फैसले लेते हैं। उन्हें शुभकामनाएं, उनका भला ही हो। लेकिन फिर भी एक समय आया जब मैंने इन बैठकों से पूरी तरह दूरी बना ली, और ये यूक्रेन की घटनाओं की वजह से नहीं था, बल्कि कुछ और कारण थे जिन पर मैं अभी विस्तार में नहीं जाना चाहता। खैर, हम अपने अमेरिकी साझेदारों को इस बारे में पहले ही बता चुके हैं। हाँ, उस बैठक में भी हमने इस मुद्दे का जिक्र किया था, विशेष तौर पर मिस्टर मेटकाफ के साथ हुई चर्चा में, क्योंकि ये वास्तव में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय था। Проинформировали американских наших партнеров об этом. Sir, You informed them in this meeting, during this meeting. Ну, и на этой тоже. Wow. with Mr. Witkoff. Да, ну, हाँ, पहले भी दी और इस बार भी दी। Oh, that's a very important aspect to it. But you have visited China. вы так думаете? आपको ऐसा लगता है? Так важно, но मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये अहम है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो आपकी स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर से मुलाकात हुई जो कि 5 घंटे चली, उसमें आपके सामने ये प्रपोजल आया था कि G8 फिर से हो जाए और आप उसमें शामिल हो जाए, और आपने इससे इनकार कर दिया कि आपको इसमें रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है? просто возникла эта тема сама по себе. Я объяснил господину Виткофу, почему я в свое время नहीं, ये विषय बस सामने आ गया। посещать эти देखिए, मैंने स्टीव विटकॉफ को समझाया कि मैंने पहले G8 की बैठकों में जाना क्यों बंद किया। सच कहूँ तो कोई प्रस्ताव ही नहीं आया, बल्कि जब ये विषय आया तो मुझे वो समय याद आया जब मैंने वहाँ जाना बंद किया था। वो 2012 का समय था, रूस में राष्ट्रपति चुनाव के बाद। फिर मैं एक बार कुछ समय के लिए गया और फिर उसके बाद नहीं गया। हाँ, ये एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, इसे काम करने दीजिए, लेकिन आप जानते हैं दूसरे बड़े संगठन भी सामने आ रहे हैं, जैसे ब्रिक्स, SCO और G20 अभी भी सक्रिय हैं, और हम इन सभी प्लेटफॉर्म्स में हिस्सा ले रहे हैं। हमें इसके खिलाफ कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अब दूसरे पहलू को देखें। रूस और यूरोपीय संघ के बीच वर्तमान संबंधों की स्थिति क्या है? ये सामान्य नहीं है। तो सोचिए, अगर मैं G8 जाऊं तो मैं G8 के सदस्यों से कैसे बात करूं? अगर वे मुझसे बात करना ही नहीं चाहते, वहां मैं क्या करूं? खैर, हम शायद इस पर बाद में बात करेंगे। Что мне там тогда делать? Ну, хотят, ну, пожалуйста, мы еще поговорим на эту тему. ठीक है, आपकी बात मानते हैं, और कई मुद्दों पर आपने तमाम अन्य संगठनों के और जो पश्चिमी वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है जिसमें वर्चस्व है पश्चिमी देशों का, आप कह रहे हैं कि उसमें हमको हिस्सा ही नहीं लेना है, उसमें मुझे जाना ही नहीं है। मैं वहां पर सार्थक तरीके से जाना चाहता हूं जहां पर महत्व है। ऐसे में मेरा सवाल आपसे यह है कि फिर इसका ऑल्टरनेट, इसका विकल्प है क्या? रिक्स है, ब्रिक्स है, ग्लोबल साउथ है, SCO है, क्या है? Вы спросили, меняется ли мир? Знаете, формируется ли новый порядок? Мир меняется постоянно. आपने पूछा कि क्या दुनिया बदल रही है, क्या एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है? देखिए, बात यह है कि दुनिया हमेशा बदलती रहती है, सब कुछ बदल जाता है, लेकिन आजकल बदलाव की गति बहुत तेज हो गई है, और हम इसे महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। Прежде всего происходят глобальные процессы экономического характера. मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया था। असल में हम वैश्विक आर्थिक बदलाव और हलचल के गवाह हैं। ये बदलाव यूक्रेन या अन्य संघर्ष क्षेत्रों से संबंधित है। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।